Hello friends, welcome to IFS. Myself Himanshu, and you are here at IFS, India's #1 institute for various competitive examination, especially for CSIR NET, UGC NET, RPSC, PSC, CUET, GATE, and other IIT JAM examinations and many more. So how can you access to these programs? You can visit on our site ifasonline.com, or you can go and sign up on our free application also, and this application is available on Android, iOS, and Windows. So what is the method? What is the exact method? It's very simple. You just need to install the application, then you just need to type your number. And why we need numbers? To filter out the spams, right? So we need the number for the verification purpose, and that's it. Now you can access to our courses. You get many high quality free content. Example being, if you are enrolling for the UGC NET examination, so you will find UGC NET previous year question papers with solved answers plus explanation. You won't find such things anywhere in the arena. Now, along with that, you will find the mock tests also. Along with that, you will find scholarship test and various information about our batches also, that is specifically designed for the competitive examination. And how exactly we do it, how exactly we achieve it? Through our team. As you can see, our team: Akash sir, Navratan sir, Siddharth sir, Sumit sir, and Saurav sir, and Pawan sir. There is a dedicated team who is always ready to mentor you, to guide you, to take you to your destination, whichever your exam is. So we are in the UGC NET, SET, RPSC. As I told you that assistant professor examinations are coming. So the batches have just launched, and the examinations are still 3 to 4 months for. So you can start your preparation right. Okay. So today my purpose is to tell you about how one can prepare for the December 2023 examination, or as we can say, the UGC NET examination. This particular lecture, or we can say that a webinar, or whatever the name you can take it, it's an introductory session for important topics, or we can say that the things is being asked in the UGC NET पेपर 1 एग्जामिनेशन, उसके बारे में मैं आपको जानकारी दूंगा. तो ये जो आप सेशन देखने के बाद में आपको पेपर 1 की तैयारी कैसे करनी है, हाउ टू प्रिपेयर फॉर द पेपर 1, बिकॉज पेपर 1 इज कॉमन फॉर ऑल द स्टूडेंट्स, for all the streams, whichever you are in, either you are from economics, geography, history, management, commerce, whichever is subject on, तो वो सबके लिए सेम आता है. Got it? चलो तो आगे बढ़ते हैं हम लोग. देखिए, सबसे पहले ये जो एग्जामिनेशन है कौन कंडक्ट करवाता है? यूजीसी करवाती है. जो भी नए स्टूडेंट्स हैं उनके लिए मैं बता रहा हूँ कि ये एग्जामिनेशन यूजीसी के द्वारा किया जाता है. यूजीसी मीन्स यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, एंड इट्स अ वेरी क्रूशियल एग्जामिनेशन. What exactly does, what is the motive behind the NET examination? The motive is to check, to know the eligibility of assistant professor plus the junior research fellowship. Means UGC conducts this examination to know that whether the candidate is eligible for assistant professor plus he or she can be the research scholar in various higher institutions of India. So this is the motive behind the NET examination. And the recent notification by the UGC, it is clear now that minimum eligibility is NET, SET, or SLET, and PhD holders are also eligible for the direct admission, direct appointment of assistant professor. So these two are the things. Without these two things, either PhD or NET examination, you can't be directly posted into assistant professor. By the various recruitments by the various commissions or the universities. So now NET is very crucial. Yeah, that is also crucial, but I would recommend you to focus more on NET examination because it is national level examination, right? Chaliye. Now, what exactly is the NET syllabus? Ignore this geography because the question pattern is same for every exam. Okay, इसमें all subject है, it's for the all subject. Name of the examination, NET. Conducting body is NTA.
exam conduct in a year, twice a year. Okay. And what will be the mode of examination? It will be online mode, CBD, computer test mode. Now, what type of question is being asked in the examination? It is MCQ, multiple choice question. Okay. Now, how many papers are there? How many exact papers? Paper 1 and paper 2. These are the number of papers. Paper 1, we are going to talk about it today. Paper 2 also we are going to talk, but we can't talk it because there are 103 subjects. UGC conducts the examination in 103 subjects. So paper 1 is common for all. So this particular video, it will be giving you knowledge about the most important topics for paper 1 examination, UGC NET or SET, because generally I have seen that SET examination plus NET examination syllabus are almost same. Now, how many questions will be asked in the NET examination? It will be 150, 50 from the paper 1 and 100 for the paper 2, and total marks would be 300. 300 will be the marks, and you will be given 3 hours for solving this paper. So it's like a rapid fire round, because you won't even get 2 minutes for one question. 150 question is in 180 minutes. Okay, so now you know the competitive level of the examination. You can't afford to have give one question 10 minutes, because if you're doing that, then you will be left out on the other questions. Now, very important questions we generally get from the people, from the candidates, that if there is a negative marking or not, still there is no negative marking in SET examination or NET examination. Okay, so next is, what is the importance of NET examination? I've already told you that eligibility for assistant professor plus award for JRF. Along with that, what you will get? You will get these 3 things. Career advancement. Career advancement, it means that if you are clearing the NET, then you will be coming the league of assistant professors. You will be connected, you will have access to national wide network, because it is national eligibility test. So you will be eligible to apply in various colleges, universities through this degree. Now, recognition of expertise, as I told you that the exam is competitive. So if you are clearing the NET, if you have the tag of NET examination clearing, so obviously you have that expertise in your paper 1 also, and in your respected subject. Like if you are from the economics, then paper 2 is totally of the economics, paper 1 and paper 2. So it means if the NET is clear, then you have expertise in that subject. So this is the importance of UGC NET examination. As see, I'm very impressed by the UGC motto also, Gyan Vigyan Muktaye. It means it is only through liberation and knowledge. Sorry, it is through knowledge and science that liberation is attained. Very beautiful quotation by the, very beautiful motto by the University Grant Commission. Now, what exactly is the syllabus for paper 1? This is the syllabus: teaching aptitude, research aptitude, comprehension, communication, mathematical reasoning, logical reasoning, information and communication, technology, means the questions about the technology like clouds, UPI, and various artificial intelligence questions. So such type of questions, so that because the world is advancing now, so we need expertise in our information technologies also. We need to because of the corona. In the corona times, government needed the people who were familiar with online e-learning platforms, जिनको पढ़ाना आता था, गवर्नमेंट उन टीचर्स को चाह रही थी. तो बहुत मुश्किल हुआ, बिकॉज आवर सिस्टम इज टोटली ऑफलाइन, और हमें कोरोना के अंदर 2 साल हमें पूरा एक रैपिड, हमें टाइम नहीं था कि टीचर्स को ट्रेनिंग दे सके, तो टीचर्स को पढ़ाना ही नहीं आ रहा था. किसी को जो पुराने टीचर्स हैं, वो इफ यू टेक इवन माय पेरेंट्स, दे आर नॉट हैबिचुअल ऑफ टेक्नोलॉजी, तो उनको बड़ी दिक्कत हुई थी. ठीक है, तो नाउ 8th is people development and environment. 9th is higher education, and 10th unit is data interpretation. So these are the units it is being asked in their examination point of view. Now let's talk about each of them. First is
टीचिंग एप्टीट्यूड। ओके, देखिए तो फर्स्ट यूनिट इज रिगार्डिंग टीचिंग एप्टीट्यूड। व्हाट एग्जैक्टली इज दिस यूनिट? you know the name teaching aptitude, it should ring a bell on your mind that it is regarding the teaching methods, because you are going to be a research scholar, you are going to be an assistant professor, so you need to understand what exactly is teaching is all about, right? So first, how the questions is being asked in the examination, it is regarding the nature, objectives, characteristics and basic requirement of effect teaching. The questions regarding the brainstorming question regarding these is has been asked in the examination, and how exactly you are going to know that what type of question is being asked from the teaching aptitude, by checking out previous year question papers, and those previous year question papers, it is available on our IFAS application. Properly unit wise it is available, so that you can get an idea that how exactly the questions are asked, it is being asked in the examination for past like 20 to 20 years. Okay, now second is importance of understanding learners characteristics and factors affecting teaching. Okay, because teaching is all about how the other person, in the sense of education, learner, and how learner perceives our teaching. That is what the real meaning of teaching. So how learners characteristic it is developing by our teaching, the questions regarding those, and what are the factors that affect the teacher's teaching, that is also taken into consideration, the questions regarding that. Second is various methods of teaching. There are various methods of teaching, so those methods you should know about that. Teaching aids like pen, chalk, duster, maps, globes, charts, diagrams, flow diagrams, so such things are called teaching aid. Okay, so like video, audio, smart projects, so these are teaching aids and evaluation systems, including formative and summative assessments. So questions regarding these, like which it can be asked in the examination, which of the following is such type of teachings. So ये पूछा जा सकता है आपको. Then comes the Bloom's taxonomy and its implication for teaching and learning. So these concepts comes under teaching aptitude. इसलिए तो आपको समझ में आया, टीचिंग एप्टीट्यूड में ये टॉपिक्स पूछे जाते हैं आपको. इन टॉपिक्स के अंदर से आपको क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कॉन्सेप्चुअल बेस्ड होते हैं. लेट्स टेक ए क्वेश्चन. लेट मी गिव यू द एग्जांपल. नाउ see, it's a very good flow diagram that latest online teaching methods and techniques, that whiteboarding, this is the whiteboard, live online classes, live chatting, game based learning, AI, discussion boards, flipped classrooms, and presentations. I'm giving a presentation, right? So this is a type of teaching method of teaching. ठीक है, तो ये जो प्रेजेंटेशन आपके सामने दी जा रही है, ये भी एक तरह से टीचिंग का ही मेथड है. नाउ देखिए, एक टर्म आया था समेटिव असेसमेंट्स एंड फॉर्मेटिव असेसमेंट. व्हाट एग्जैक्टली दीज मींस? सी, समेटिव असेसमेंट मींस स्टेट असेसमेंट्स, डिस्ट्रिक्ट बेंचमार्क्स, एंड ऑफ यूनिट, स्टैंडर्ड बेस्ड assessments. So these are typical conventional traditional type of assessment. Now comes the formative assessment. See, formative assessment consists of quizzes, observations, homework, classwork, charts and Venn diagrams. So this is the way of formative assessment, and the left list is about summative assessment. So now you understand the difference between summative and formative. So this difference can be asked in the examination. So UGC wants to know that whether the upcoming professor, he knows about the various assessments or not. Let's take an example. What are the characteristics of continuous and comprehensive evaluation? This is the question, previous year question I've taken. The first is, it increases the workload on students by taking multiple tests. Either or, it replaces marks with grades. Third option was, it evaluates every aspect of the student. Fourth is, it helps
in reducing examination phobia. So first of all, we have to understand what exactly continuous and comprehensive evaluation is. If we know about this concept, then we can easily answer this question. ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपको और इसी तरह से आपको तैयारी करनी होती है. Now, if you even don't know about it, if you don't know about the continuous and comprehensive evaluation, because there is no negative marking, so you should be guessworking, है ना. If you don't know about this theory, still you should try to do it right. Now, this first option A, it looks odd because continuous and comprehensive evaluation can't be workload, है ना. It is saying that it increases the workload on students by taking multiple tests. No, it doesn't. So we can eliminate the first option. We can eliminate A option. So if elimination method we use in solving the question papers, so first is gone, the second is gone. Okay. Now, and other these three options, it replaces marks with grades. Yes. It evaluates every aspect of the students. Yes. And it helps in reducing examination phobia. So by checking these options, 4 options, we saw that only one was odd out of the 3. So you can take the chances on this one. So B, C, D is important. The B, C, D was the answer. We eliminated the A1. So even if you don't know about the theory, still you should be always on the ethical side, positive side of the education. ठीक है, तो इस तरह से आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं. बट ये तो जस्ट एक ट्रिक थी, बट आपको पढ़ना है टीचिंग एप्टीट्यूड के बारे में. ओके, नाउ लेट्स मूव टू द सेकंड यूनिट. द सेकंड यूनिट, it stands for research aptitude, because you are going to be a research scholar also in the future. So we should know about the ethics, about the concepts of research aptitude also. Now, what is generally asked in the examination? Definition and importance of research, its meaning, characteristics and the types: basic, applied, descriptive, analytical and experimental research. So these are the concepts like definition and importance of research, its meaning, its characteristics and the various types. Second is steps and methods of research from problem identification to report writing. Because जब आप PhD में enroll होगे, whenever you will be pursuing PhD, then from the you will be बहुत सारे टॉपिक्स आएंगे, टिपिकल टॉपिक्स आएंगे. तो प्रॉब्लम आइडेंटिफाई से लेकर, बिकॉज if you are doing PhD on something, then you are trying to solve the problem. बेसिकली वही होता है कि आप किसी पर थीसिस लिख रहे हैं, आप कोई PhD कर रहे हैं, तो आप कुछ रिसर्च कर रहे हैं. You are trying to solve the basic problems. So from finding the problem, identify the problem, till the report writing, the final lesson, what are the steps and methods of research that is being asked in the examination. Now, the third point is importance of research ethics, plagiarism, academic writing and thesis writing. हमको इसके बारे में पता होना चाहिए. ये क्यों आ रहा है रिसर्च एप्टीट्यूड? क्यों? क्योंकि जब आप नेट JRF देंगे एग्जामिनेशन, तो देयर आर 2 थिंग्स: नेट दैट फॉर द असिस्टेंट प्रोफेसर एंड नेट JRF इफ यू आर परस्यूइंग फॉर द रिसर्च पर्पसेस. तो उसी एग्जाम में आपको थोड़े से मार्क्स और लाने होते हैं. कट ऑफ चेक कर लीजिए. तो आपको सपोज करो, जस्ट गिविंग ए एग्जांपल ऑफ ए सब्जेक्ट, दैट इन एन सब्जेक्ट if 184 marks is for the net examination, for clearing the net examination, generally it is 20 to 25 more for the JRF. I'm giving you example of a geography subject for example per se. So 184 was the cutoff for net examination, but JRF was going above 200, 204, 206. So now you know you understand the difference between net and JRF, because you are getting stipend from the government. The competition is very cutthroat. Now, see types of research.
types of research: descriptive, analytical, applied, fundamental, quantitative, qualitative, and empirical research. So these are the types of research, and questions is being asked from these subtopics. Now let's take an example. In action research, what is the usual sequence of steps? That whenever you're doing action research, now understand, this is not the simple research, this is action research. So it's specifically asking from action. What is the usual sequence of the steps? And the question, options are in front of you: reflective, observe, plan, and act. Plan, act, observe, reflect. Plan, reflect, observe, act. Act, observe, plan, and reflect. So what should be the answer? Now let's go. Second one is the correct answer. That first we have to plan, then we have to act on that plan, then we have to observe that, and in the final reflection will be your thesis writing, report writing. That is final reflection, that what was your plan and what you worked upon. So such type of question, these are the previous year questions I've taken from each unit. So better understanding that how exactly the questions are being exam में पूछा जाता है. ठीक है. The third is about reading comprehension. We are doing this comprehension since our childhood. 5th class में भी comprehension आता है, 6th में भी आता है. The difficulty level keeps on going. Now, how do we prepare for this? See, regular reading of reading comprehension passages and answering related questions to improve reading speed, vocabulary and understanding. तो इसके लिए कुछ आपको एक्स्ट्रा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस आपको रेगुलरली व्हाटएवर यू आर रीडिंग, इफ यू आर रीडिंग एनी मैगजीन्स, इफ यू आर रीडिंग न्यूज़पेपर्स, तो उसमें एडिटोरियल्स जो आते हैं आप उनसे ही प्रिपेयर कर सकते हो. आपको इस यूनिट के लिए कुछ एक्स्ट्रा मेहनत करने की जरूरत नहीं है. हाँ, कुछ टेक्निक्स होती हैं, जैसे कि स्किमिंग कैसे करते हैं, स्कैनिंग और समराइजिंग. तो ये हम लोग करते हुए आ रहे हैं. ये आप नॉर्मली, इसके लिए कोई आपको कोचिंग नहीं दे सकता है. दिस इज जस्ट योर ओन इंस्टिंक्ट एंड हाउ मच यू हैव रेड, how exactly is the type of reading you are doing. If you are doing between the lines reading, that will be very effective for you. Reason why I am saying this, because ये habit हमें अभी डेवलप करनी पड़ेगी. अगर आप सोचते हैं कि हमें कुछ नहीं पढ़ूं और वहां पर जाके मुझे सीधा आ जाएगा, you won't be able to read those 20 lines. और आपको कितने मिनट कितना मिल रहा है? बहुत कम मिनट मिल रहे हैं. तो आप उस पैराग्राफ को मैक्स टू मैक्स 2 बार पढ़ सकते हो. ज्यादा पढ़ेंगे तो फिर आपका क्वेश्चन वो रह जाएगा, उसी में टाइम ज्यादा लग जाएगा. तो हमें जो रीडिंग हैबिट्स है और वहां से क्वेश्चंस किस तरह से उठाने हैं वो अब हमें पता होना चाहिए. ठीक है. नाउ दिस इज द एग्जांपल ऑफ ए कंप्रहेंशन आपके सामने है. वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के लिए है कि वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन इज द प्रैक्टिस ऑफ प्रोटेक्टिंग प्लांट्स एंड एनिमल स्पीसीज एंड देयर हैबिटेट्स. तो इस तरह से आपको ढंग से, क्योंकि पहले क्या था, हम लोगों को ऑफलाइन पेपर मिलता था, वी कैन यूज आवर पेंसिल्स टू अंडरलाइन दैट और समथिंग. Although it was not allowed, but still the offline mode was very comfortable to read with. अब क्या है, सारा ऑनलाइन कंप्यूटर में है, तो हमें थोड़ी सी डिफिकल्टी होती है. तो इस तरह से आपको इसको ढंग से, बहुत ही पॉइंट जहां भी आपको नया कुछ लग रहा है कि हाँ ह्यूमन एक्टिविटीज किस तरह की, सच एज डिफॉरेस्टेशन, पोल्यूशन एंड पोचिंग, तो वी शुड रिमेंबर दिस कि क्या था उसके अंदर, क्योंकि क्वेश्चंस हैं वो इसी से पूछे जाते हैं. देखिए, व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन. ये देखो, ये रहा मेन ऑब्जेक्टिव. प्राइमरी गोल क्या है? सर्वाइवल ऑफ स्पीसीज इन द वाइल्ड. दिस इज द आंसर. तो इस तरह से आपको, ये जैसे 3 क्वेश्चन है आपके सामने, इस तरह से आपको पूछे जाएंगे और आपको करेक्ट आंसर देना है. ये स्कोरिंग भी बहुत होते हैं. दीज क्वेश्चंस आर वेरी स्कोरिंग इफ डन करेक्टली. तो इसलिए बहुत ध्यान से इनको करना है. ठीक है. नाउ लेट्स मूव टू द 4th यूनिट, दैट इज कम्युनिकेशन. व्हाट इज what is communication, what is the nature of communication, characteristics, types, verbal, non-verbal and visual communication, various type of barriers and effective class communication. इस ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. नेचर पूछ लिया जाएगा, वो कैरेक्टरिस्टिक पूछ लिया जाएगा कम्युनिकेशन का, और आपको टीचिंग के अंदर कम्युनिकेशन स्किल्स कैसी होनी चाहिए, और मतलब टीचिंग में और प्रोफेशनल लाइफ में आपकी टीचिंग स्किल्स की इंपॉर्टेंस क्या है, वो आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे. क्यों? क्योंकि टीचिंग तो सारा कम्युनिकेशन का ही पूरा है. आप समझ रहे हो,
अगर आपको कोई कॉन्सेप्ट नहीं भी आ रहा है, एज ए टीचर इफ यू आर नॉट एबल टू लेट स्टूडेंट लर्नर अंडरस्टैंड व्हाट यू वांट टू कन्वे, स्टिल इफ योर कम्युनिकेशन स्किल इज वेरी गुड, अगर आपकी कम्युनिकेशन स्किल इंप्रेसिव है, तो आप स्टूडेंट को सेटिस्फाई कर सकते हैं कि किसी भी तरह से, तो उसको कुछ ना तो उसको एम्बेरेस फील होगा, ठीक है। अगर कोई बच्चा वीक है तो उसको किस तरह से हैंडल करना है, दैट कम्स अंडर द कम्युनिकेशन स्किल्स। तो स्किल से, कम्युनिकेशन स्किल से रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। ओके, नाउ लेट्स टेक ए क्वेश्चन। इन ए क्लासरूम ए कम्युनिकेटर्स ट्रस्ट लेवल इज डिटरमाइंड बाय व्हाट? Communicators trust level determined by what? The use of hyperbole, the change of voice level, use of abstract concepts, and the fourth is eye contact. So let's see the answer. It is eye contact. ठीक है, the trust level of communication is the eye contact. It is very important. If you are shying away by whenever you are delivering any lecture, if you are not seeing in the eyes of a student, it means यू आर नॉट प्रिपेयर्ड येट, आप प्रिपेयर नहीं है, या फिर आप कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर कर रहे हैं जिससे कि आप आई कांटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। तो अगर आपको ट्रस्ट लेवल इंक्रीज करना है अपने स्टूडेंट्स का, तो आपको आई कांटेक्ट को इंक्रीज करना होगा, ओके, कॉन्फिडेंटली। तो ये क्वेश्चन क्यों आया है, ये चेक करने के लिए आया है कि वेदर द कैंडिडेट ऑफ यूजीसी नेट और वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन वो ढंग से सीधा स्ट्रेट माइंड सोच रहा है कि नहीं सोच रहा है। ओके, नाउ let's move to the fifth unit, reasoning including mathematics, some sort of mathematical questions in reasoning, number series, letter series, codes, relationships, analogies and classification। ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपको, ये हम लोगों ने किए हैं, ये ज्यादा बहुत बड़ा लेवल नहीं है, ओनली टिल द लेवल ऑफ 10th क्लास। 10th एनसीईआरटी जिसने मैथ्स की करी है तो आराम से एपी जीपी हमने सबने पढ़ा है, सीरीज के बारे में पढ़ा है, बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चंस आते हैं। लॉजिकल रीजनिंग, अंडरस्टैंडिंग द स्ट्रक्चर ऑफ आर्ग्यूमेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, आर्ग्यूमेंट के स्ट्रक्चर को अंडरस्टैंड करना, इवेल्युएटिंग डिडक्टिव एंड इंडक्टिव रीजनिंग, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, तो ये इनमें से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एंड द थर्ड इज मैथमेटिकल रीजनिंग इंक्लूडिंग अर्थमेटिक, एल्जेब्रा एंड जियोमेट्रिक प्रॉब्लम्स। ये तो अपने दिक्कत ही नहीं है कि हम तो चाइल्डहुड से ये सबको पढ़ते हुए आ रहे हैं। हाँ, किसी ने बहुत साल हो गए छोड़े हुए कि हाँ हमने तो पता नहीं मैथ्स कब पढ़ी थी, उनके लिए प्रॉब्लम हो सकती है, तो उन्हीं के लिए ये रिमाइंड करवा रहे हैं कि आपको इनको पढ़ना जरूरी है। वहां पर बहुत इजी क्वेश्चंस आएंगे, एंड द मोमेंट यू सी वन क्वेश्चन विच इज फ्रॉम द 8th 9th स्टैंडर्ड और आप नहीं कर पा रहे हैं, तो बहुत गिल्टी फील होगा कि ये थोड़ा सा मैं पढ़ लेता तो आराम से क्वेश्चन में सॉल्व कर लेता। ठीक है, तो इसको जरूर करना है, मैथ्स से डरना नहीं है, स्पेशली द आर्ट्स स्टूडेंट जिनके आर्ट्स है वो मैथ्स के नाम से डर के भाग जाते हैं, तो उनको ये नहीं करना है। एक बार आप देखिए, आपको उल्टा अच्छा लगने लगेगा कि बिकॉज दीज क्वेश्चंस ये फ्री के मार्क्स है, बिकॉज इसमें आपके आंसर गलत होगा तो नेगेटिव मार्किंग तो होगी नहीं, और आंसर सही हो जाएगा तो यू आर गोइंग वन स्टेप क्लोजर टू योर सक्सेस, योर डेस्टिनेशन। ऑलराइट, नाउ सी द नेक्स्ट टर्म इन द सीरीज, दिस इज द एग्जांपल आई एम गिविंग, द नेक्स्ट टर्म इन द सीरीज इज B2E D5H F12K and the H2N। तो आप खुद देखिए, B and D, C is the gap, D और F के अंदर कौन है, E है, E और E सॉरी इसके अंदर F E हो गया, F और H के बीच में क्या डिफरेंस है, लाइक G is the missing number। ओके, अब बताइए H गैप आ रहा है ना, मतलब एक को स्किप किया जा रहा है, तो यहां पर H की जगह सबसे पहले टर्म क्या आएगा, J आएगा, I स्किप कर दिया तो J आ गया, तो J आते ही हमारा ये कैंसिल आउट हो गया। नाउ सेकंड इज 2 5 12 27, ठीक है, इसको कीजिए, क्या होगा इसका बताओ, कर लिया। अब देखो बड़ा इजी क्वेश्चन है, देखिए 2 to 5 के बीच में जाने तक इसको 2 into 2 plus 1, ठीक है, ये हो गया 5, उसके बाद में 5 into 2 plus 2 जा रहा है, मतलब 10 plus 2 जा रहा है, ठीक है,
उसके बाद में 12 इंटू 2 प्लस जो भी रिजल्ट है उसमें, तो पैटर्न समझ में आ गया, मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 1 2 3 4 हो रहा है। तो अब नेक्स्ट क्या होगा, ऑटोमेटिकली दिमाग लगा लीजिए कि इसके अंदर 27 इंटू 2 54 प्लस 4, तो क्या हो गया 58। ठीक है, 58 हो गया। तो जे के बाद में क्या आएगा 58 आएगा। ओके, अब देखो जैसे ही 58 आया ऑटोमेटिकली ये कैंसिल आउट हो गया, तो अपन इसको यहीं रोक सकते हैं। वी कैन गो टू अनदर क्वेश्चन, और इफ यू वांट मोर क्लियरिटी तो क्या कर सकते हैं, लास्ट वाला और चेक कर लीजिए। तो ई एफ जी एच आई जे, ठीक है, और उसके बाद में देखो दो का गैप आ रहा है। ठीक है, तो एन ओ पी फिर क्या आता है क्यू, 2 गैप्स आ रहे हैं, तो एन के बाद में क्या आएगा ओ पी और पर थर्ड नंबर पे क्यू। तो इसका आंसर क्या हो गया, 4th इज द करेक्ट आंसर। तो ये क्या है, ये रीजनिंग है थोड़ी सी, जो है आपको लॉजिकल बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं ये। ठीक है ना, तो 4th वाज द करेक्ट आंसर, और इसको इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। ओके, नाउ इफ यू लाइक in IFS what we have done, that whatever lectures we are delivering on our YouTube lives, we are providing the PDF of that particular lecture on our application, so that whenever you're revising this the lecture, so you don't need to be go anywhere, you just take out that PDF and you can just read it out. आप अपने फोन में पढ़ सकते हैं, उसको लैपटॉप में पढ़ सकते हैं, किसी में भी पढ़ सकते हैं। तो रिवीजन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसलिए आपको अगर पीडीएफ चाहिए किसी भी लेक्चर की, जो भी हमारा यूट्यूब लाइव होता है, उसको यू कैन डाउनलोड द एप्लीकेशन अगेन एंड यू कैन गेट द कंसर्न पीडीएफ रिगार्डिंग दैट। नाउ अब आपको समझ में आ रहा होगा दैट हम जो लोग पढ़ रहे हैं, अब जैसे मैंने आपको 4 यूनिट बताई है अभी तक, तो आपको समझ में आ रहा होगा कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कितने इंपॉर्टेंट है। आपको समझ में आ रहा है, आर यू अंडरस्टैंडिंग द इंपॉर्टेंस ऑफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स। सी, ये जो मैं पढ़ा रहा था, ये आ सकता है, ये आ सकता है, आपको माइंड में था कि हाँ ऐसा आ सकता है, बट जब तक मैंने वो क्वेश्चन नहीं दिखाया था तब तक वो यूनिट क्लियर नहीं हो रही थी। ठीक है ना, तो हमें ये जो मॉक टेस्ट होते हैं, मॉक क्वेश्चन होते हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर होते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तभी हमको समझ में आता है कि अच्छा इस तरह से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और ये यूजीसी नेट की ही नहीं, सेट एग्जामिनेशन, असिस्टेंट प्रोफेसर की एग्जामिनेशन, या व्हाटएवर यूपीएससी पीएससी और प्रिपेयरिंग फॉर, सभी के लिए ये चीज इंपॉर्टेंट होती है। इसलिए हमें हमेशा जो मॉक टेस्ट जो कि क्लोजली रिजेंबल करे रियल टेस्ट को, वो करना चाहिए। मॉक टेस्ट बहुत अवेलेबल है मार्केट के अंदर, बट जो पैटर्न बराबर की डिफिकल्टी लेवल हो और क्वेश्चन उसी तरह के पूछे जाए जो एग्जाम में पूछे गए हैं, वो तरह के मॉक टेस्ट करने हैं। बिकॉज टाइम बहुत वैल्यूएबल है, हम लोग ऐसे नहीं कर सकते कि हाँ सारा, क्योंकि बहुत सारे मॉक्स अवेलेबल है, तो यू हैव टू चूज द राइट वंस which are having same difficulty level as the original ones. Okay, now you should be aware about the mock tests, that whether they have been updated or they have been prepared by the experts or not. जिनको सब्जेक्ट या तो जिनका निकला हुआ है, निकला हुआ का मतलब जिन्होंने यूजीसी नेट को क्लियर कर रखा है पहले, उनके द्वारा कोई नोट्स बनाए हुए हों, एंड अपडेटेड होने चाहिए, करंट अपडेटेड होने चाहिए वो। एंड लास्टली इज वी शुड choose a mix of subject specific and full length mock test. हमें क्या करना चाहिए, पहले तो आपका जो भी कंसर्न सब्जेक्ट है, if you are from the economics, you should be taking only economics, and then you should be taking only paper 1, और फिर बाद में जब आप रेडी हो जाएं, उसके बाद में आप फुल मॉक टेस्ट लीजिए जो मिक्सिंग होता है। इस तरह से आप मॉक टेस्ट को अप्रोच कीजिए, और ये मॉक टेस्ट कहाँ मिलेंगे आपको, ifasonline.com पर मिल सकते हैं। ठीक है, आपको पूरा डिफिकल्टी लेवल का ब्लेंड मिलेगा, और आपको एक्सपर्ट्स के द्वारा किया गया, बिकॉज जो भी आपको मैंने अभी टीम दिखाई थी स्टार्टिंग में, दे ऑल हैव क्लियर्ड नेट नॉट ओनली वंस, किसी ने 2 4 बार 5 बार सबने कर रखा है। तो दे नो हाउ एग्जैक्टली द पैटर्न इज इवॉल्विंग थ्रू आउट द ईयर्स। तो उनके द्वारा मॉक टेस्ट बनाए गए हैं पेपर 1 के लिए भी, पेपर 2 के लिए भी, तो आप उनको अटेंड कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो लेट्स रिज्यूम। Another piece of announcement that, like, I'm from the geography,
So our batches have been launched from 24th of July along with various other subjects also, economics, management, business administration, computer science, English literature। तो सभी के 24 जुलाई से बैचेस लॉन्च हो चुके हैं। जो दिसंबर 2023 को अटेम्प्ट करना चाहता है उनके लिए बहुत ही एक वैल्यूएबल बैचेस, एक बहुत क्रूशियल टाइम है, बिकॉज अभी से प्रिपेयर करेंगे तभी आप मतलब दिसंबर तक रेडी हो पाएंगे। ओके, नाउ our next is the next unit is logical reasoning। लॉजिकल रीजनिंग किस तरह से क्वेश्चंस आते हैं, देखो वेन डायग्राम आपने देखे होंगे ना, इस तरह से है ना, इसे पूछे जाते हैं। तो ये अभी क्वेश्चंस लेंगे तो समझ में आ जाएगा। वेन डायग्राम्स क्वेश्चंस इज आस्क्ड, एनालिटिकल रीजनिंग, इवेल्युएटिंग इन्फेरेंस, सिलोजिज्म, स्टेटमेंट बेस्ड प्रॉब्लम्स, टेक्निक्स टू इंप्रूव लॉजिकल रीजनिंग, स्किल्स एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेबिलिटीज। देखो ये बड़े ही थोड़े से हार्ड टर्म्स हैं, बट ये हार्ड पूछा नहीं जाता है, बहुत ही नाइव लेवल, नॉर्मल लेवल पूछा जाता है, स्कूल लेवल का ये सब चीजें पूछी जाती हैं। तो आप इनको देखकर मत सोचिए कि ये हो कोई इक्वेशन आएगी क्या, ये वेन डायग्राम क्या हो गया। नो, आपको ये आपने सब लोगों ने, हम लोगों ने पढ़ा है, एनसीईआरटीज में सब लोगों ने पढ़ा है ये चीज, जस्ट वी नीड टू रिवाइज इट। देखिए क्वेश्चन देखिए इस तरह से पूछे जाते हैं। ये एक एनालिटिकल मतलब एक लॉजिकल रीजनिंग के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है। आपने बहुत देखे होंगे इस तरह से क्वेश्चन कि अजय उसका फ्रेंड था, इसका फ्रेंड था, ये देखा तो उसका क्या लगता है। तो ऐसे क्वेश्चंस आते हैं यूजीसी के अंदर टू चेक आउट योर लॉजिकल रीजनिंग एबिलिटीज। तो आवर क्वेश्चन इज, अजय इज अ फ्रेंड ऑफ राकेश, पॉइंटिंग टू एन ओल्ड मैन, अजय आस्क्ड राकेश हु इज ही। राकेश सेड, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए Rakesh said that his son, that old man's son is my son's uncle। मेरे बेटा का जो है चाचा है, उसका बेटा है, मेरे बेटे का चाचा मेरा भाई हो गया, और उनका वो मतलब फादर है वो, उसका उनके बेटे हैं वो। तो ये क्या है, इसका आंसर क्या होगा, फादर होगा। ठीक है, समझ रहे हो। तो अब बताओ इनको कैसे अप्रोच करना है। व्हाट आई यूज्ड टू डू, आई यूज्ड टू टेक दीज कैरेक्टरिस्टिक, जो ये कैरेक्टर्स है ना अजय और राकेश, ये मैं मेरे फैमिलीज के ऊपर ले लिया करता था। इट्स अ ट्रिक टू सॉल्व बिकॉज इट वर्क्स एवरी टाइम फ्रॉम मी, बिकॉज मैं रिलेट नहीं कर पा रहा हूँ अजय राकेश से मैं रिलेट नहीं कर पा रहा हूँ। तो जैसे कि मैं, हिमांशु इज अ फ्रेंड ऑफ दिनेश, तो मेरे फ्रेंड है दिनेश, तो उनको मैं उनको साथ लेके मैं एक जो है माइंड के अंदर मैप बना लेता हूँ, और फिर बाद में खुद की फैमिली के ऊपर ये पॉइंट आउट करके आराम से इजीली क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। तो आप भी ट्राई कीजिएगा इस तरह के क्वेश्चंस, ठीक है, बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएंगे। चलिए, द नेक्स्ट इज डाटा इंटरप्रिटेशन। सी व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ सोर्सेज, एक्विजिशन एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा, प्लस ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, मैपिंग ऑफ डेटा इंक्लूडिंग बार ग्राफ्स। इस तरह के जो क्वेश्चंस आते हैं बार ग्राफ्स होंगे, ठीक है, लाइन चार्ट्स, लाइन ग्राफ्स, पाई चार्ट्स, इस तरह के जो पाई चार्ट्स होते हैं वो, और फिर टेबल्स। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चंस आपको, ये जो आपने इस तरह के क्वेश्चंस देखे हैं ना, और ये बहुत ही नॉर्मल लेवल के आते हैं, तो इनसे बिल्कुल भी डरने की भागने की जरूरत नहीं है। तो ये जो बार ग्राफ्स है, लाइन चार्ट्स है, इट विल बी ए रोलर कोस्टर राइड फॉर फ्रॉम द चाइल्डहुड, कि हम जिससे भाग रहे हैं वही वापस आ रहा है, बट बहुत स्लो। आप एक रिवीजन के तौर पे इसको रिवीजन के तौर पे पढ़िए, तो आपको ऑटोमेटिकली बॉडी विल रिमाइंड यू दैट व्हाट यू हैव रेड इन द पास्ट। ओके, नाउ question is, a survey find out that out of 50 people 18 enjoy tennis, 22 enjoy swimming and 10 enjoy both tennis and swimming. How many people enjoy either tennis or swimming? तो इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ये डाटा मतलब आपको डाटा दिया गया है, इसको इंटरप्रेट करना है, ठीक है। तो इसका आंसर अपना 20 है। जब इसको सॉल्व करने जाएंगे तो ये आंसर आएगा। तो ये क्या दिया अपन को, ये डेटा दिया है, और इसको हम लोग क्या पूछा है इसने, हाउ मेनी पीपल इंजॉय आइदर टेनिस और स्विमिंग। ये डाटा दिया और उसको अपने ऊपर छोड़ दिया कि जाओ इसको इंटरप्रेट करो कि किस तरह से इसको करेंगे। तो इसमें वेन डायग्राम्स वगैरह यूज आएंगे, इससे आप इसको आराम से कर सकते हैं, ठीक है। नाउ
The next is information and communication technology. What exactly is the meaning of ICT? Advantage, what are the disadvantage of ICT? Uses of ICT in education and research. ICT का मतलब information and communication technology. Then comes our general abbreviations like full form, RAM, ROM, CPU, like ना GUI, इस तरह से जो फुल फॉर्म्स होती हैं, अब्रिवेशंस होते हैं, वो पूछे जाते हैं. टर्मिनोलॉजी पूछी जाती है कि व्हाट एग्जैक्टली इज द कैश मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी क्या होता है. ये तो एक मेरे दिमाग में जो अभी अपन नॉर्मल पूछते हैं वो आ रहे हैं, बट हाँ थोड़े थोड़े से क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होती है और ग्राफिक्स वगैरह इस तरह से मतलब क्वेश्चंस रिलेटेड टू टेक्नोलॉजी वो पूछी जाती है कि क्यों ये क्यों पूछा जा रहा है, कि जो भी कैंडिडेट है उसे थोड़ा सा ज्ञान है कि नहीं, उसे नॉलेज है कि नहीं है टेक्नोलॉजी का. बिकॉज अभी हमें टेक्नोलॉजी की जरूरत है, क्योंकि कोरोना जैसा पेंडेमिक अगर वापस आ गया तो आवर प्रोफेसर शुड बी रेडी टू गो ऑनलाइन एंड गिव द क्लासेस. डिजिटल इनिशिएटिव्स इन हायर एजुकेशन वेरी इंपॉर्टेंट. जो भी हायर एजुकेशन के अंदर डिजिटल इनिशिएटिव्स लिए गए हैं उनके बारे में हमें पता होना जरूरी है, जैसे कि ई लर्निंग, मॉक्स एंड डिजिटल लाइब्रेरीज. ठीक है. बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर ऑपरेशंस, इंटरनेट के बारे में, और इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज लाइक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, VR टेक्नोलॉजी, वर्चुअल रियलिटी, ऑगमेंटेड रियलिटी, तो इनके बारे में हमें जानना जरूरी है. नाउ एग्जांपल देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंस्टेंट मैसेजिंग एप्लीकेशन. इंस्टेंट मैसेजिंग एप्लीकेशन, व्हाट्सएप, सिग्नल एंड टेलीग्राम, ये तीनों ही एक इंस्टेंट मैसेजिंग एप्लीकेशन है. ठीक है. देन कम्स द पीपल डेवलपमेंट एंड इन्वायरमेंट यूनिट. इसमें आपको डेवलपमेंट और इन्वायरमेंट बीच का रिलेशनशिप, ह्यूमन एंड इन्वायरमेंट के बीच का इंटरेक्शन, पोल्यूशन एंड पोल्यूटेंट्स का सोर्स, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो कि 17 है उनके बारे में, इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन, क्लाइमेट चेंज और वेरियस इन्वायरमेंटल इश्यूज जैसे कि डिफॉरेस्टेशन, डेजर्टिफिकेशन एंड बायोडाइवर्सिटी लॉस, इनके बारे में आपको क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. देखिए इस तरह का क्वेश्चन है कि व्हाट इज द मेन गोल ऑफ यूएनडीपी टू प्रमोट सस्टेनेबल डेवलपमेंट. तो आपको यूएनडीपी के बारे में जानना, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के बारे में जानना जरूरी है. कब यूएनडीपी एस्टैब्लिश हुआ था? 1950. देखो इस तरह से क्वेश्चंस आते हैं. ठीक है. व्हाट इज द करंट एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ यूएनडीपी? मिस्टर स्टेनर इज द करंट एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ यूएनडीपी. ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ यूएनडीपीज फोकस एरियाज? Military defense, poverty reduction, gender equality, climate change are the focus and military defense is not the focus of UNDP. तो कैसे पता चलेगा? जब हम लोग UNDP के बारे में जानेंगे तो इसे हम आराम से कर सकते हैं. ठीक है. And the last unit is higher education system. That how our learning and research have evolved in India, how the institutions have evolved, how the policies and governance has evolved in the our higher education system. वैल्यू एजुकेशन, एथिक्स एंड प्रोफेशनल रेस्पॉन्सिबिलिटीज इन हायर एजुकेशन, इस तरह के क्वेश्चंस, इनमें से वैल्यू एजुकेशन के क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे. और जो भी रिसेंट में डेवलपमेंट्स हुए हैं, जो भी चैलेंजेस हैं इंडियन हायर एजुकेशन सिस्टम में, उनके बारे में आपको, जैसे नेशनल हेल्थ पॉलिसी, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, ठीक है, इनके बारे में पूछा जा सकता है. जैसे रिसेंट में इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट के बारे में पूछा गया था, जिसको मैंने यूट्यूब पर लाइव भी लिया था. अब क्वेश्चन है, द ग्राउंड्स ऑन which discrimination in admission to educational institutions is constitutionally prohibited are. इसका है ABC. Sorry. The grounds on which discrimination is administered, मतलब कौन से ग्राउंड्स पर हम लोग जो इंडिया की एजुकेशन सिस्टम है उसके अंदर किसी को भी एडमिशन देने से मना नहीं कर सकते. तो रिलीजन, सेक्स एंड नेशनलिटी, रिलीजन, सेक्स एंड प्लेस ऑफ बर्थ को लेकर हम किसी को भी डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते हैं. हाँ, नेशनलिटी को लेकर कर सकते हैं, जैसे कि ये असिस्टेंट प्रोफेसर वाली जो एग्जाम है वो सिर्फ इंडियन नेशनल दे सकते हैं. तो ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं. ठीक है ना. नाउ और जो पेपर 2 है वो बड़ा, वो सब्जेक्टिव है, सब्जेक्ट स्पेसिफिक है. जैसे अब हमारी ज्योग्राफी के लिए अलग से वीडियो बनाई हुई है, पर्टिकुलर पूरी जो भी सिलेबस है पूरा कवर किया गया है. तो यूजीसी नेट ज्योग्राफी पर जाकर देख सकते हैं. यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स पर इकोनॉमिक्स का प्रेजेंट है. इकोनॉमिक्स यूजीसी नेट मैनेजमेंट पर मैनेजमेंट का जो पेपर 2 का पूरा इवोल्यूशन दिया गया है, तो आप उनको जरूर जाकर चेकआउट कीजिए. ठीक है. नाउ प्रिपरेशन की टिप्स यही है. सबसे पहले है
सिलेबस देखिए, एग्जाम पैटर्न को देखिए, स्टडी मटेरियल और रिसोर्स को देखिए, टाइम मैनेजमेंट को जरूर देख लेना है, प्रैक्टिस और रिवीजन ये तो एक अभिन्न अंग जिसको बोलते हैं वो है प्रिपरेशन का। ठीक है, एग्जाम डे की स्ट्रेटेजी क्या है? काम रखिए खुद को, टाइम का इफेक्टिवली मैनेज कीजिए, सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं और इंस्ट्रक्शंस को जरूर रीड करना है। ठीक है, वैसे तो इंस्ट्रक्शन सेम रहते हैं, जो भी चेंजेस रहते हैं वो पहले ही पता चल जाते हैं, बट स्टिल यू शुड रीड इट आउट। तो इस तरह से हम लोग यूजीसी नेट पेपर 1 के लिए स्टडी कर सकते हैं, एक प्लान बना सकते हैं। आपको मैंने क्वेश्चंस बता दिए, हर यूनिट को ढंग से एक्सप्लेन कर दिया, किस तरह से क्वेश्चंस आते हैं वो आपको एक डेमो दे दिया गया है। तो आप IFS के ऊपर ये सब अवेलेबल है, आप YouTube पर जुड़े रहिए। ओके, आपको सब तरह के जो है सारी यूनिट्स का हम लोग इसका एनालिसिस करते हैं, प्रॉपर PYQs लेकर जाते हैं, तो आप इसको जरूर अटेंड कीजिए लाइव सेशंस के लिए। ठीक है, सो दिस इज इट फ्रॉम माय साइड एंड कीप स्माइलिंग। एकदम हैप्पी मन से, शांत मन से, काम मन से, एकदम स्माइल करते करते ही एग्जाम दीजिए, प्रिपरेशन कीजिए, बहुत बढ़िया आपका एग्जाम होगा। मन लगा के करेंगे, रिलीजियसली, लेजिटिमेटली, किसी ने ऑनेस्टली अगर किया है तो आराम से उसका नेट आराम से हो जाएगा और थोड़ी सी मेहनत करते ही JRF पक्का है। ठीक है, तो आपको इसी तरह से इंफॉर्मेटिव वीडियोस हम लोग देते रहते हैं, तो जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, जरूर शेयर कीजिए। जो नेट के एग्जामिनेशन करना चाहता है उसको तैयारी करने के लिए आप ये वीडियो जरूर शेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो सी इन द नेक्स्ट वन।